हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आई हैड टू ब्रेक द क्लास। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रॉब्लम 17. We have covered 17 problems. So in the last class, if you want to check my last class, then please go to the description. There is a link given in the description. So please do check. Actually, it is the playlist of all the classes of geometry. So you can check it out. So अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम 18 से हम करने वाले हैं प्रॉब्लम 18 से 17 तक वी हैड कवर्ड। ठीक है, सो शुरू करते हैं। So let O be the in center of a triangle ABC. Let O be the in center of a triangle ABC and D be a point on the side BC of a triangle ABC. D is a point on ABC on BC. Let's say this is D, such that OD is perpendicular to BC. OD is perpendicular to BC. If angle BOD is 15 degree, this is 15 degree. This point is D and this is 15 degree. BOD is 15 degree. Then angle ABC is, so ये वाला एंगल आपको निकालना है, this angle. ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे? ये perpendicular है, so this is 90. Angle ODB is 90. ठीक है, ये 90 है. सो ये वाला एंगल कितना बचा? ये वाला एंगल 75 होगा. ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, हमें पूरा एंगल चाहिए ABD. अब हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो भी 75 होगा, बिकॉज BO इज a angle bisector. BO is angle bisector because O is in center. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. सो दोनों 75 के हैं, तो ऐड होके कितना हो गया? 150 हो गया. ठीक है, सो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो देखते हैं ये प्रॉब्लम. इन अ ट्राइंगल ABC, in center is O, and angle BOC is 110 degree. Then the measure of angle BAC is, so you need to find angle BAC and O is the in center. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? मैंने को बताया था कि अगर ये एंगल A है और दिस इज इन सेंटर, so this angle would be 90 plus A/2. We have discussed this formula in previous class, in last class. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? This 110 is 90 plus A/2. This 110 degree is 90 plus A/2. So A कितना आ जाएगा मेरा? A मेरा 40 डिग्री आ गया. ठीक है, 110 में से 90 माइनस करेंगे 20, और इस 20 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 40 आ गई. ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन आपको कम से कम
स्टेप्स में करनी है, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द स्टेप्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग। और भी तरीका हो सकता है, वी कैन सॉल्व इट बाय अनदर मेथड। सो हाउ? We know this angle is equal to this angle is equal to this angle, because O is in center. So BO and CO are angle bisectors, ठीक है। तो this is alpha, this is alpha, this is beta, this is beta. So alpha plus beta must be 70 degree in this triangle. Alpha plus beta must be 70 degree. So 2 alpha plus 2 beta must be 140 degree. So this is 2 alpha, this is 2 beta, this is 140 degree. So this must be 40 degree, because 140 and 40 is 180 degree. Clear? आगे चलते हैं। If I be the center of triangle ABC, this is triangle ABC, I is the center, and angle B is 70 degree, angle C is 50 degree, then the magnitude of BIC. So BIC बताना है, this angle, ये कितना होगा, ठीक है। So we know this angle must be 35 degree, because BI is angle bisector. This must be 25 degree, half of 50. So 35 and 25 कितना हो गया, 60 degree. So this must be 120 degree, ठीक। Next problem. The internal bisector of the angles B and C of a triangle ABC meet at I. Internal bisector of B and internal bisector of C meet at I. If angle BIC is A by 2 plus X, then X is equal to, so you need to find the X. So how will you find it? We know this angle is also equal to 90 plus A by 2. We know this angle is 90 plus A by 2. So A by 2 cancel, X equal to 90 degree. So ये क्वेश्चन सीधा ही फॉर्मूले पर पूछ लिया उन्होंने। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, 90 प्लस A by 2। तो कंपेयर करेंगे तो X 90 आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। O is the incenter of a triangle PQR. O is the incenter of triangle PQR and QPR is 50 degree. Then the measure of angle QOR. So QOR बताना है आपको। तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन हर बार एसएससी हर साल पूछती है, बार बार सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में लीक हो चुका है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में लीक हो चुका है, ये तो आना ही आना है मतलब, ठीक है। तो 90 प्लस A by 2 लगा दिया फिर से हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC is I. In center of a triangle ABC is I. Angle ABC is 90 degree. Angle ABC is 90 degree. तो हम इसको ऐसे बनाएंगे जिससे ABC looks like a 90 degree. ABC is 90 degree. Angle ACB is 70 degree. So this must be 20 degree. Angle AIC, I is in center and AIC जो एंगल है वो हमें दिया है कितना, AIC एंगल हमें दिया है, अच्छा AIC से पूछा है, AIC आपको फाइंड करना है भाई, ठीक है। दिस एंगल आपको ये फाइंड करना है AIC। सो
कैसे करेंगे AIC? हमें पता है कि ये वाला एंगल क्या होता है, 90 प्लस b/2 हो जाएगा, क्योंकि b इसके अपोजिट में है, ठीक। सो 90 प्लस b इज 90, 90 प्लस 45 कितना आ गया, 135। ये 10 होगा, ये 35 होगा, 45 हो गया, ठीक है 135 ही होगा भी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एंगल B इज 70 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री, angle B is 70 degree, angle C is 60 degree. The internal bisectors of the two smallest angles of a triangle ABC meet at O. So this must be 50 degree because one is 70, other is 60. So this must be 50. So दो smallest angles कौन कौन से हैं इसमें, 50 डिग्री और 60 डिग्री होंगे smallest angles। 70 डिग्री तो बड़ा है, तो smallest angles का internal bisector लिया है उसने, ठीक है, और वो O पर मिलता है, ठीक है, meet at O. The angle so formed at O is, O पर कौन सा एंगल बनता है ये बताना है, ठीक है भाई। So if O is the in center, तो AO बाइसेक्टर होगा, तो ये 25 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये मिलाकर 55 डिग्री बन गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 55, ठीक है, कितना आ गया ये 125, ठीक है। सो 125 आंसर आ गया। या फिर इस वाले एंगल को वैसे निकाल सकते हो कि 90 प्लस b/2 होगा, फॉर्मूला पता है हमें। सो 90 प्लस b इज 70/2, तो यहाँ से भी 125 आ गया, ठीक। आगे चलते हैं। तो all the questions we have covered from in center and in radius. Now we need to learn relation between R and R. R is circumradius and small r is in radius, ठीक है। दोनों ही टॉपिक हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, सर्कमरेडियस एंड इन रेडियस, बट इनमें रिलेशन क्या होता है वो देखना है। तो आप ये समझो कि कोई भी ट्राइंगल है, उसमें सर्कम सेंटर है और एक इन सेंटर है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसको याद कर लो आप, इम्पोर्टेंट है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, I और C के बीच में ये डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई, ये आपको याद करना है। तो एक तो ये रिलेशन है सर्कम रेडियस और इन रेडियस में, दूसरा रिलेशन हमें वो भी पढ़ना है, वो देख लेते हैं जल्दी से। कि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो तीनों ही साइड सेम होंगी, तो इसका जो सर्कम रेडियस होता है वो ये होता है, उसका ये फॉर्मूला था, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एंड द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल r इज a/2√3, ठीक। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट कैपिटल R इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, इंपॉर्टेंट है ये, बट इट इज जस्ट फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कैपिटल R और स्मॉल r का जो रेशियो होगा दैट इज 2:1, क्लियर हो गया। सो ठीक है, फिर इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, जैसे कि ये प्रॉब्लम देखो, द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो बात उसने क्या बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल कर दिया स्पेसिफाई, ठीक है। तो सर्कम रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, सो आपको इन रेडियस बतानी है। तो इन रेडियस
हाफ होगी, अभी पढ़ा हमने, इन रेडियस हाफ होगी, ठीक। द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, तो ये पढ़ ही चुके हैं, 2:1 होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट सेंटर जो हमें पढ़ना है वो है एक्स सेंटर, और ये लास्ट हम सेंटर पढ़ेंगे बस, इसके अलावा कोई सेंटर अब नहीं बचा है। तो व्हाट इज एक्स सेंटर वो देखते हैं। एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल ABC, ठीक है, और हमने इसको एक्सपैंड किया आगे, AB लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया, AC लाइन को भी हमने आगे प्रोड्यूस किया, ठीक। और BC को टेंजेंट मानकर, AB जो लाइन प्रोड्यूस की है उसको टेंजेंट मानकर, और जो AC लाइन प्रोड्यूस की है उसको टेंजेंट मानकर एक हमें सर्कल ड्रॉ किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग अजीब होगा बट ठीक है, इस तरह का सर्कल मिल गया हमें। तो और ट्राइंगल ABC में ये वाली साइड हम B ले रहे हैं, दिस साइड इज C एंड दिस इज A, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर करता हूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं इस एंगल का, ऐसे ही इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, ठीक है। और वो ये पॉइंट इस सर्कल का, एक्स सर्कल का सेंटर होगा, और इसी को हम एक्स सेंटर बोलेंगे, और इसकी रेडियस को हम एक्स रेडियस बोलेंगे, ठीक है भाई। तीनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक। और ये ध्यान रखना है आपको, ये जो पॉइंट है और ये जो टच हो रहा होगा पॉइंट, ये लाइन BC लाइन सर्कल को टच कर रही है कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं होंगे, ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो होगा वो यहां पर होगा जहां टच करती है, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं होगा, ठीक है। तो हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन SSC में पूछने के चांसेस काफी कम रहे हैं हमेशा से, बट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, so you need to learn some formulas like x radius is equal to delta upon s minus a। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला था that is delta by s, so now there is just one more addition that here a is also come, and what is a, this side at which circle is made, जिस साइड पर सर्कल बना हुआ है उस साइड को आपको माइनस कर देना है S से, S यानी कि सेमी पैरामीटर से, ठीक है। S यानी कि सेमी पैरामीटर से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C/2 ये होता है सेमी पैरामीटर। और A साइड क्या है, क्योंकि इस साइड पर ही सर्कल बना है, X सर्कल बना हुआ है, सो ये साइड में माइनस करनी है। डेल्टा तो हमें पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा यहाँ पर, ठीक। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
आगे चलते हैं। तो इसमें हमें और क्या जानना है वो भी एक बार जल्दी से देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन इस पे पूछा सकता है कि फाइंड द एक्स रेडियस। दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है, एक्स रेडियस पर तो क्वेश्चन शायद पूछा गया हो, आई डोंट नो, बट जो क्वेश्चन बार बार पूछा है वो मैं बता देता हूँ आपको कि ट्राइंगल ABC है सपोज, ठीक है, और आपने ये आगे बढ़ा दिया और एक सर्कल ड्रॉ किया जो तीनों को टच करता हुआ जा रहा है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, जो टच कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ, और ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज इक्वल दिस, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज इक्वल दिस। सो ये हमारा एक्स सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर है। तो आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ, इसको आई ले लिया, तो एंगल BIC बताओ, एक ही टर्म आपको ये वाला एंगल दे देगा वो, सपोज ये कुछ भी दे दिया आपको, 80 डिग्री दे दिया ऐसे, तो BIC एंगल इस बार 90 - A/2 होता है, ये याद रखना है आपको। इन रेडियस ये सॉरी एक्स इन सेंटर के केस में एंगल BIC 90 + A/2 था, ठीक है। एक्स सेंटर के केस में दिस इज 90 - A/2, ठीक। तो आपको याद रखना है ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखना चाहिए साफ साफ कि ये एंगल छोटा बनेगा। जब ट्राइंगल ऐसा था तो ये वाला एंगल काफी बड़ा बन रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे फैला हुआ एंगल है, ये ऐसे छोटा एंगल है ये वाला एंगल। सो इसका फॉर्मूला 90 - A/2 होगा और इसका फॉर्मूला 90 + A/2 था, ठीक है। यहाँ पर ये I इन सेंटर है, यहाँ पर ये I एक्स सेंटर है। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है कि जब अंदर बनता है एंगल तो बड़ा बनता है, वो बाहर बनता है छोटा बनता है, ठीक। तो इस केस में जो आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकते हैं एक्स रेडियस, ठीक। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। For an equilateral triangle, the ratio of the in radius and the x radius is, equilateral triangle है तो in radius बताना है आपको, कितना होता है equilateral triangle में in radius, ये होता है। और x radius क्या होगी, x radius वो हमें पता है कि डेल्टा अपॉन s - a फॉर्मूला पढ़ा हमने, तो डेल्टा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये होता है और s 3a/2 होता है और -a कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये √3/4 a² अपॉन a/2, a से a कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2a, ठीक। तो आपको इन दोनों का रेशो बताना है, इसका और इसका, तो कितना आएगा इनका रेशो, एक वैल्यू है a/2√3 और एक वैल्यू है √3/2a, तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। इस क्लास से पहले आपको जो लास्ट क्लास है वो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये क्लास अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो डेल्टा जो था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इतना होता है एरिया, S होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स का सम बाय 2, सो इसलिए 3a/2 आ गया और -a तो -a कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, ये फॉर्मूला भी आपको अब याद कर लेना है कि एक्स रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल की √3/2a होती है, ठीक है। नहीं याद हो सकती है तो फॉर्मूला तो ये वाला याद होना ही चाहिए, जिससे आप फॉर्मूला लगाकर कम से कम निकाल सको, जैसे मैंने अभी निकाली है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला तो मुझे याद ही था,
दोनों का रेशियो पूछा है तो दोनों का रेशियो निकाल दिए। ठीक, सो आगे देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ऑल द सेंटर्स में पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन ऑल द सेंटर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई भी जनरल ट्राइंगल है, कोई भी जनरल ट्राइंगल है तो उसमें सी जी ओ 3 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे। C इज सर्कमसेंटर, G इज सेंट्रॉइड एंड O इज ऑर्थोसेंटर। ठीक, ये ऑर्थोसेंटर है, ये सेंट्रॉइड है और ये सर्कमसेंटर है। तो ये पॉइंट हमेशा, ये तीनों पॉइंट हमेशा हमेशा एक लाइन पर ही होते हैं। ठीक, और ये 1:2 में होते हैं, 1:2 में, दिस 1 दिस इज 2। ठीक है, ये 1:2 में होंगे हमेशा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इन सेंटर कहीं अपना होगा, इन सेंटर कहीं अपना अलग होगा, और इन सेंटर और सर्कल सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम पढ़ ही चुके हैं, वो इतना होगा, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सेंटर अलग हो सकता है, इन सेंटर कहीं ऐसे होगा और इसका डिस्टेंस ये होगा ऐसा। इन सेंटर और सर्कल सेंटर के बीच का डिस्टेंस r² - 2rr√। ठीक, ये है फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए ऐसा होता है। तो ये बात आपको पता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, यानी कि दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये इक्वल है, तो सभी चीजें इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सॉरी सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर चारों ही कोलिनियर होंगे, चारों ही एक लाइन में होंगे। ये 1:2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस अभी भी ये इतना ही रहेगा, बट ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, चारों ही कोलिनियर होंगे अगर ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस यानी कि AB और AC दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, तो सारे पॉइंट्स इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर कोइंसाइड होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, वो कोई एक ही पॉइंट होगा। क्लियर है बात? कोई एक्स पॉइंट ले लिया, ये ही पॉइंट सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब सारे पॉइंट्स इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। If in a triangle the circumcenter, incenter, centroid and orthocenter coincide, the triangle is, पढ़ चुके हैं, सारे जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड करते हैं किस ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया जिसमें हमने सारे सेंटर्स पढ़ लिए। ठीक है, तो सेंटर्स खत्म हो गया हमारा। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी, एक तो मास पॉइंट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, मास पॉइंट मेथड समझ लीजिए, मास पॉइंट मेथड। उसके बाद साइन रूल पढ़ेंगे हम, कोसाइन रूल हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, ये चार चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद आपका ट्राइंगल ये पूरा खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास यानी कि 9th क्लास, तो 9th क्लासेस में ये पूरा ट्राइंगल्स खत्म हो गया है। उसके बाद हमें 2 क्लास लग जाएंगी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में 2 क्लास लग जाएंगी। उसके बाद 2-3 क्लास लग जाएंगी हमें सर्कल में।
ठीक है, तो 14 क्लासेस और एक क्लास एरियाज, जिसमें हम सारे एरियाज पढ़ेंगे, एरियाज ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो 15 क्लासेस में आपकी ज्योमेट्री पूरी कवर हो जाएगी। 15 क्लासेस में ज्योमेट्री बड़ी है, तो इसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं मेंस में मतलब 15 क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे, 15% के आसपास इससे आ जाता है। ठीक है, तो उतनी ही क्लासेस लगभग इसमें लगेंगी, 15% आएगा, 15 क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।